Good evening. Good evening. Kshitiz, good evening. So, last class we have started uh, average, right? So mean, average or mean. We have already started mean and average, and we have done some questions. Maybe 5 or 6 questions we have done it in the average. So let's start. Today's topic is still average, but we will discuss about weighted average, and the reverse of weighted average is actually called alligation, and then mixtures. Then the question based on mixtures and how we deal the question on mixtures. In CAT paper, almost in each and every year, when you give your CAT paper, you will definitely get a question based on maybe average or maybe allegation based question or mixtures, क्योंकि mixtures is based on allegations. तो mixture पे question तो होता ही है. So please आप देखिए कि कैसे हम questions को deal करते हैं and how we are going for any question. So let's start with weighted average first. ठीक है? Let there be two classrooms, A and B. There are two classrooms. A and B are the two classrooms, right? The number of students in classroom A is, let it be 50 students. And in classroom B, it's 40 students. This is number of students. Yes, good evening, Shubhangi. It's number of students, right? And the average weight of classroom A is, yes, Anirudh, good evening, everyone, good evening. Average weight is 40 kg, and average weight of B classroom is, let it be 60 kg. ध्यान से देखिए, the average weight of classroom A is 40 kg, and the average weight of classroom B is 60 kg. So what I have done, I am mixing the two class. When I mix the class, mixing of two class, new average will be, देखो new average निकालना, it's very simple. So new average is nothing but product of 50 and 40, right? 40 students, 50 students, and each students have 40 kg. So total weight of all 50 students will be 40 into 50. And there are 40 students in classroom B, and each has 60 kg as a weight. So can you say that it is 60 into 40? So is it my total weight including both classrooms A and B? And when you divide the total strength of the classroom, that is 50 plus 40, I will get my new average, right? So this is what is the answer? 5 into 4, 20. So 200, 6 4 ja 24, 240. Is it 5 plus 4, 9? एक 0 हमने हटा दिया. It's a 440 divided by 9 is the answer. That is 440 by 9. इसको solve कर लेना. 9 4 ja 36 and 8 0 9 9 तो नहीं. Approximately मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही. चलो approximately. Can we say approximately 49? Decimal में आएगा 48 point something. So I'm saying approximately 49 will be the average weight. हमारा पर्पस अभी निकालना नहीं है कि कितना एक्चुअल है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, यू विल गेट इट. या अगर इसमें परेशानी हो तो जस्ट राइट डाउन 48.98 जा 72 80 98 जा 72. I think it will be 48.88.
Exactly, this is the answer. 48.88 और 48.8 बार you can write down, क्योंकि यही repeat करेगा 48.8 बार. So I can easily get the new average. Hopefully it is clear. So इसमें हम क्या करते हैं, number of strength और number of students को multiply करते हैं, and then number of students into its average को multiply करके and divided by total strength. This is what we do. But मैं इसको थोड़ा different तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. I am writing it out. Let there be two classrooms, A and classroom B. Right? And the average of first classroom, अब आप देखिए मैं इसको different तरीके से लिख रहा हूँ, 40 and 60. So average is 40 kg and this is 60 kg. This is average. Average of classroom A is 40 kg. Average of classroom B is 60 kg. The strength, the number of students in this classroom, इसमें कितना दिया था हमने, पहले वाले में 50, दूसरे वाले में 40. So पहले वाले में 50, दूसरे वाले में, actually confusing ये है कि हमने 40 दोनों same ले लिया. So this is actually number of strength. This is strength of the students. Right? So this is called, ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, this is called X bar. अब देखिए, this is called X bar. X bar is said to be the new average when you mix the two things. When you are mixing the two things, this is the new average X bar. And please understand, X bar always be greater than 40, the least of the average, and less than 60. So ये जो आपका जो भी होगा mean या X bar, यानी जो weighted average जिसको आप कहते हो, this is also called weighted average. Weighted average always lie between the least and the max. ये least value है, average का सब दोनों में से सबसे छोटा है 40, दोनों में जो बड़ा है 60. So your average must lie between 40 and 60. Point number 1. ठीक है? Second point. Conclusion और क्या क्या हम draw करते हैं? If the strengths are equal, strengths of students are equal, then X bar is simply 40 plus 60 by 2, and that is equal to 50. समझ में आ रहा है? This is 50. At the midpoint. आपको मैं जो बात बता रहा हूं ध्यान सुनिए. This is 40 average, एक तरीके से बीन बैलेंस है, और ये भी बीन बैलेंस पे बना हुआ है. This is a 60. अगर आपने मिड पॉइंट पे पकड़ा, राइट, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है. अगर आपने बीच के पॉइंट्स को पकड़ा, यानी मिड पॉइंट मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, सो योर एवरेज विल बी द मिड पॉइंट, दैट इज 50. बट अगर तुम्हारे पास इधर वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है, अगर बच्चे जिधर ज्यादा होंगे उधर ही एवरेज डेविएट होता है. मैं जैसे कहूं कि हमारे पास बच्चे अभी बराबर है, इन दोनों में बच्चे बराबर है. अगर इस वाले, जैसे इसको हम कह रहे हैं क्लासरूम ए, दिस इज क्लासरूम बी. अगर ए का बच्चा, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रेटर देन फ्रॉम बी, यानी ए की स्ट्रेंथ अगर बी से ज्यादा होगी, सो एवरेज विल लाई फ्रॉम 40 टू 50. एवरेज इसी में लाई करेगा, वेटेड एवरेज. अगर ये तुम्हारा केस है, so this is the case when A is greater than B. और when B is greater than A, अगर B की strength A से ज्यादा होगी, so your average will lie from 50 to 60.
your average will lie from 50 to 60. I hope clear. बेटा बहुत सारे इंफॉर्मेशन इससे हम गैदर कर सकते हैं और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि वेयर आवर एवरेज लाई. किसी को प्रॉब्लम है इसमें? और आप पिछले क्वेश्चन में देखिए भी, आपको ये एग्जाम्पल से समझ में भी आना चाहिए स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा थी, ए की. तो यानी डेविएशन कहाँ होना चाहिए था, ए की तरफ, ए की तरफ. तो आप देखिए आंसर 40 और 50 के कहीं पास पास होगा. व्हाट वाज योर आंसर? इट इज इन बिटवीन 40 टू 50. इट इज नॉट ग्रेटर देन 50. ठीक है. बच्चों समझ में आ गया ये? प्लीज. ओके जया, एवरीवन क्लियर? यस यस यस, ठीक है. लेट्स डू. सर व्हाट इफ देयर आर 3 क्लासेस? ओके. पंकज, फॉर 3 क्लासेस वी कैन नॉट डू इट लाइक दिस. हम लोग उसमें मीन हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज मीन इज ऑलवेज फाइंड आउट फॉर 2. हाँ, हम ये इंश्योर कर सकते हैं. अगर हम 3 के बारे में बात करेंगे, यू आर राइट, देयर आर 3 क्लासरूम्स, ए बी सी, राइट. तो उसमें हम ये कंक्लूजन तो ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम बता सकते हैं कि जो भी एवरेज होगा क्या होगा और कैसे हम निकालेंगे. बट ये वाला कंक्लूजन शायद हम नहीं ड्रॉ कर पाए, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द वेटेड एवरेज इन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. हम लोग 2 के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, नॉट फॉर 3. 3 के लिए हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा. ठीक है पंकज? Yes, sir, got it. ठीक है. Because there are some foundations of each and every topic. Not necessarily we get every answer कि हम इसमें भी कह दें, क्योंकि हम इसमें आपको कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 में नहीं. बट यही पूछे जाते हैं. और 3 के अगर पूछे भी जाएं, 3 के अगर पूछे भी जाएं तो वेटेड एवरेज पूछेंगे. और वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है. देखिए, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी x1 है, सॉरी x1 ऑब्जर्वेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 है और ये f2 है, ये x3 है और f3 है. आई थिंक ये आपको पता है ना. x1 f1 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो वी राइट f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 and divided by f1 plus f2 plus f3. This is called weighted average, you can say, for 3 quantities, right? When you mix all 3. When you mix all 3, it's a 3 quantities. और ये till n terms के लिए भी हो सकता है. It can go for n terms. But we are not dealing with this. हम लोग ऐसे नहीं डील कर रहे हैं. हम लोग तो बेसिकली 2 टर्म्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. और 3 टर्म्स के बारे में आएगा तो हम 3 टर्म्स के क्वेश्चंस को इंडिविजुअली डील करेंगे. वी विल नॉट गिव एनी न्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग 3 और 4 टर्म्स, 3 और 4 सेक्शंस. ठीक है. सो इसके बारे में हमें इतने डिटेल करने की जरूरत नहीं है. चलिए, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है. आप देखिए, देयर आर 2 क्लासरूम्स. अच्छा, किसी ने बोला था समझ में नहीं आया. हु इज दैट? ओके सानिया, व्हाट हैपेंड? Didn't understand or you have joined late? Sir, I have joined late. Now I have understood. After you explained the formula, I understood Okay. it. So I should continue ना? शुरू करें? Yes, sir. फिर. So let's take, now I'm giving you what is alligation. Alligation. Alligation is the reverse of weighted average. यानी जो हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं, अगर हम उसके रिवर्स प्रोसेस को यूज करें, दैट इज कॉल्ड एलिगेशन. देखिए, अभी तक आपने क्या क्या दिया. You have an average, you have number of students, then you find x bar.
In allegation, what will be given? You will be given this, you will be given this, and in fact you will be given this also. मतलब ये भी given होगा, ये भी given होगा और ये भी given होगा. You need to find out these ratio. What is सर the strength एवरेज के ratio? नीचे क्या लिखा है? सर एवरेज के नीचे क्या लिखा है? नंबर ऑफ Students, क्या students, लिखा है? students, अच्छा, नंबर students, ऑफ स्टूडेंट. students. ठीक है सर. ठीक है. So let the x1 is the average of the of the A classroom. Let x2 be the average of the second classroom, right? Let x bar be the weighted average. Please understand, x bar is the weighted average. मतलब आपके पास x1 दिया हुआ है average of classroom A. This is classroom A. This is weighted average for classroom B. And this is weighted average for mixing these two. So now I am doing x bar is the new average when you mix classroom A and B. यानी दो को मिला के जब आप एवरेज निकालते हो, दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज. ऑल्सो तो ये देखिए, ये हमने इससे लाइन से कनेक्ट कर दिया, इस तरीके से लाइन से हमने कनेक्ट करा. ठीक है. let the strength of classroom A be F1. Let the strength of classroom B be F2. यानी क्लासरूम A की स्ट्रेंथ F1 है, क्लासरूम B की स्ट्रेंथ F2 है. ये आपका नहीं गिवन होगा. दिस विल नॉट बी गिवन. What are given terms? This is given, this is given, and this is given. What do you have to find out? You have to find out what is F1 by F2 ratio or number of students of classroom A to classroom B. और क्या क्या इंफॉर्मेशन है? We know that x bar will be greater than x1 and it is less than x2. ये ऑलरेडी मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ना कि ये दोनों के बीच में लाई करेगा. So, अब हम यहाँ क्या लिखते हैं मैं आपको बताऊं. Can you say that x2 is greater than x bar? So I will write f1 as x2 minus x bar. यानी इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करके यहां लिखते हैं. इनका दोनों का डिफरेंस जो है इट विल बी रिटन हियर और इन दोनों का डिफरेंस विल बी रिटन हियर डायगोनली. तो इन दोनों में बड़ा कौन है? x बार है यहाँ, बिकॉज x बार इज ग्रेटर देन x1. सो इनका डिफरेंस क्या होगा बेटा? x bar minus x1. So I can say that f1 is to f2 is nothing but x2 minus x bar upon x bar minus x1. This is called alligation. This formula is said to be alligation. यह है समझ में बच्चों? Understand or not? So how did you come up? I mean, was this given that x bar lies between x1 and x2? x1 See, छोटा है तो definitely. x2 नहीं नहीं, ये नहीं दिया हुआ है. x1 छोटा है, x2 बड़ा है, बट ये जरूर दिया है कि x1 x2 में कोई एक छोटा है, कोई एक बड़ा है, राइट? हमने मान लिया कि x1 सबसे छोटा है, दोनों में x1 छोटा है, x2 बड़ा है. ये तो आपको कोई ना कोई मानना पड़ेगा, कोई एक बड़ा कोई एक छोटा, राइट? बट कौन बड़ा कौन छोटा वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. बट डेफिनेटली ये तो मैं कह ही सकता हूं कि x बार मस्ट लाई बिटवीन x1 एंड x2. x बार मस्ट लाई बिटवीन x1 एंड x2. और मैंने आपको कहा भी कि द डिफरेंस x बार एंड x2, अगर आप x2 छोटा लोगे इससे तो जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी कैसे लिखना है वो आप देख लेना. अगर x2 x बार से छोटा है तो आई विल राइट x बार माइनस x2. तो यहां मुझे लिखना पड़ेगा x1 माइनस x बार. बट मैंने पहले ही केस ले लिया है कि x बार इज नाउ ग्रेटर देन x1 लेस देन x2.
तो आप अपनी मर्जी से जैसे लिखना चाहो लिख लो, ये छोटा लो, ये बड़ा लो, ये बड़ा लो, ये छोटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्स बार मस्ट बी फ्रॉम दिस टू दिस। और डिफरेंस आपको लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस भी कौन सा? पॉजिटिव डिफरेंस। यानी अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे, ये बड़ा ये छोटा है जैसे भी लिखा हो तो डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे। आई होप क्लियर, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। And we will do, I'm telling you, we will do at least 5 to 8 question on allegation। आपको समझ में आना शुरू, अरे सर ये तो बहुत आसान है, एलिगेशन यूज करने से हमारा टाइम की बचत है। और ये देखो हम एलिगेशन कैसे लाते हैं, मैं आपको थोड़ा प्रूफ करके दिखा दूं। आई एम शोइंग यू दैट कि आखिर ये आता कैसे है। लेट्स टेक वंस अगेन ए, लेट्स टेक वंस अगेन बी। कुछ भी नहीं है, ये वही है जो वेटेड एवरेज आपने सीखा है। Let this be x bar, right? And this is f1 and this is f2। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? f1 by f2 का रेशियो is same as x2 minus x bar, यानी f1 is proportional to किसके नंबर्स के होगा? x2 और x bar का डिफरेंस। और f1 किसके किसके डिफरेंस होगा? इट विल बी x bar minus x1। आई होप क्लियर, यही लाना है ना हमें। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा अच्छा सॉरी, f1 ट्वाइस हो गया, ठीक है। अब आप सुनिए कैसे करेंगे। हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया बेटा, x बार इज नथिंग बट x1 f1 प्लस x2 f2 इज इट बाय f1 प्लस f2। आई होप ये तो समझ में आ रहा है कैसे आता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f1 इंटू एक्स बार प्लस f2 इंटू एक्स बार इज इट इक्वल टू x1 f1 प्लस x2 f2। f1 को एक तरफ ले लो, इसको आप इधर ले जाओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा f1 x बार माइनस f1 x1 इज इट इक्वल टू f2 x2 माइनस f2 x बार। कैन यू टेक कॉमन f1? व्हाट इज लेफ्ट? x bar minus x1। Can you take common f2? I will take x2 minus x bar. So what you are getting? f1 by f2 is finally I am getting x2 minus x bar divided by x bar minus x1। क्या हमारा ये देखो सेम आया? Am I getting the same result? ठीक है, राइट बच्चों, क्लियर है? तो ये आपको एक्सपेंशन नहीं करने हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाने हैं, फॉर योर नॉलेज, फॉर योर कॉन्सेप्ट, सो दैट कि मैं सीधा रट्टा नहीं मार के, हमने आपको बेसिकली यही कराया है। बट आई हैव गॉन थ्रू कि डायरेक्टली हम एलिगेशन यूज करेंगे, और इसी को हम फाइनली एलिगेशन कहते हैं। यानी व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट a is to b रेशियो और f1 is to f2 रेशियो, वी यूज एलिगेशन। हाँ डेफिनेटली अंशुल, जस्ट वेट। आई होप क्लियर, एवरीवन क्लियर? अंशुल this slide okay, so this is all about allegation। और इसी पे अब हमें स्टार्ट करने हैं क्वेश्चंस, हाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमने कल कहां तक ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे ना? 12% increased, I think this is we have done it, question number 6। अच्छा बच्चों, कैन यू डू क्वेश्चन नंबर 7 नॉट राइट नाउ, कैन यू डू इट एट योर होम? इसको घर पे कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ एलिगेशन, हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं।
this is the question. Question is same ही question है क्या? Question is, in a class there are two sections A and B. In a class there are two sections A and B with respective strength 75 and 50. So this is 75 is the strength and 50 is also the strength of the classroom. The average marks of section A and section B are 40. So this 40 is your average marks. So black से मैंने 40 लिख दिया. This handout is beta QAHO 1002309. Right? So 40 is the average of classroom A. Okay, Anshul, good. And 80 is the average of classroom B. Find the average marks of students of section A and B. I think ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है. So average marks, मैं इसमें कोई allegation यूज नहीं करूंगा. ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, right? और allegation बोलोगे तो मैं allegation भी निकालूंगा इससे. Can you say x bar is 40 into 75 plus 80 into 50 divided by how many students? What is the strength? 75 plus 50. Is it 75 plus 50 is 125? So what is the answer? Question number 8. Answer is 56. Hope all of you getting this 56. Please understand, can we do it by allegation? Obviously, ये जो question है बेटा, ये allegation से करने में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है इस question को. But फिर भी I am telling you allegation. 40, 80. ये average है. Let weighted average be x bar. कर सकते हैं ना? Weighted average भी x bar. और ये जो strength निकलेगा ये वाला हमारा, क्योंकि 80 बड़ा है तो is it 80 minus x bar difference? देखो इन दोनों का difference is 80 minus x bar और इन दोनों का difference क्या होगा बच्चों? x bar minus 40. और ये दोनों रेशियो किसका है? A is to B का रेशियो है ना बच्चों? So E is the ratio of this is F1 and this is your F2. तो क्या हम कह सकते हैं 75 divided by 50 is nothing but ratio of 80 minus x bar divided by x bar minus 40. So this is 25 into 3, 25 into 2. अब इसको जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, so we have 3x bar minus 120 is equal to 160 minus 2x bar. So we have 5x bar is equal to, I think, 280. Is it x bar equal to 280 over 5? 5, 5 is 25. Am I getting the same answer? See, 56 and 56. Aditi, please join it on time, beta, because already 15 minutes हम आगे बढ़ चुके 20 minutes. Weighted average हम लोग निकाल रहे हैं Aditi. Weighted average by using some method that is called alligation. Alligation में हम क्या करते हैं? इन दोनों का दो वैल्यूज के एवरेज का हम x बार मानते हैं और यहाँ हम इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं यहाँ इस वाले डायगोनल में. इस वाले डायगोनल में भी डिफरेंस लिखते हैं, लेकिन डिफरेंस कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव डिफरेंस. x बार जो है वो 40 से बड़ा होता है और 80 से छोटा है, तो डिफरेंस क्या लिखेंगे? x बार माइनस 40 यहाँ, और इनमें 80 बड़ा है तो 80 माइनस x बार. और इन दोनों का रेशियो वही होता है जो स्ट्रेंथ का रेशियो होता है. तो स्ट्रेंथ क्या है? 75-50. तो 75-50 रेशियो इज सेम एज दिस रेशियो. आई होप समझ में आ गया होगा. सो दिस इज यूजिंग ऑफ एलिगेशन. तो थोड़ा एलिगेशन से आसानी से हमारा ये बन गया. ठीक है बच्चों, आगे बढ़े.
Now, another question. Another question. In a class, there are two sections A and B, same question with same data. The average marks obtained by the students in section A in science test are 40 and this is 80. ये तो वही question है. And the ratio of number of students is, yani the ratio of students is 3:2, right? So what is the average of the entire class? So you can also say let the average be x bar. तो क्या हम कह सकते हैं इसका x bar होगा, is it 80 minus x bar and इसका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, x bar minus 40. और ये रेशियो बेटा वही है, ये इन्होंने जानबूझ के तुम्हें बोला. देखो 3:2 अब भी है ये 75-50. इज इट रेशियो 3:2? यानी आंसर तो यही आएगा, 56 ही आएगा, क्योंकि डेटा भी सेम है, एवरीथिंग इज सेम. ओनली द स्ट्रेंथ रेशियो इज गिवन. वहां तुम्हारा एक्चुअल स्ट्रेंथ वाज गिवन, सो कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेंथ वाज गिवन और रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ वाज गिवन, क्योंकि डिफरेंसेस तो हम वैसे ही निकालते हैं. ठीक है. सो माय आंसर इज वंस अगेन 56. Hopefully you are understanding this concept of allegation now. Please tell me the answer. Now I'm waiting your answer. Correct, Anshul. Well done. Yes, anyone? Only one or two are getting the answer. One or two people getting the answer. Samrid Agrawal. Is it 1.4x? You're saying 1.4x. What is x? Will you write the answer in terms of x? देखिए बच्चों, answer is CBD. Cannot be determined. Answer is we cannot find the answer. Why? Why? Because there are two classrooms, A and B. Okay. The average marks of the students of sections A and B and the scientists are 1:2. So it means actually the marks is not given. It is 1:2. Can we take x and 2x? यही अंशुल ने लिया होगा. Sorry, समृद्ध ने लिया होगा. Can you take x and 2x? And the strength is 75 and 50. अगर मैं x बार निकालने जाता भी हूँ, तो हमारा फॉर्मूला होता है 75 into x plus 50 into 2x and divided by 75 plus 50.
clerical staff 60, and some executive staff. Some executive staff. I don't know how many. Let it be X. Right? The average salary of all the employees is 21,000. Abhi 21,000 means what? Average salary of all employees. So can you say, कह सकते हैं कि the average salary of clerical staff, मैं clerical staff का salary लिख रहा हूँ, it's 15K. Is it clear? And executive staff का 30K. और दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल कंपनी ने देखा कि हमारे एक स्टाफ की सैलरी इज 21K. हाँ ठीक है बच्चों, आप लोगों ने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है. 21K. नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव स्टाफ्स आर देयर. तो मैं एलिगेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें एवरेज दिया हुआ है. So this is 30K, 21K. What is difference of 30 and 21? Is it 9K? What is difference of 21 and 15K? Is it 6K? आप देखोगे कितना आसान बन रहा है. Is it 9K and 6K? So what does 9K, 6K stands for? 9K, 6K means it is 3 is to 2. Are you getting my point? 3 is to 2. What does 3 is to 2 stands for? 3 is to 2 stands for if there are 3 clerical staff, there will be 2 executive staff. There will be 3 clerical staff, 2 executive staff. So how many clerical staff you have? 60. So how much you have to multiply to get 60? 3 into 20. So isko bhi 2 into 20. So my answer is 2 into 20 is the answer. That is, we have 40 executive staff. क्योंकि this ratio is the strength. Clerical staff, ये ratio किसका था? Clerical staff divided by executive staff का ratio is simply 3 is to 2. और आपको पता है 3 is equivalent to 60. So 2 is equivalent to how much? Definitely 40. So my executive staff is 40. ठीक है? Hopefully you understand. ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एलिगेशन सीधा सीधा यूज करा एंड वी हैव वेरी इजी आंसर. हम लोग तुरंत आंसर भी निकाल पा रहे हैं. So this is the first example of allegation we are using. All of you understand? बच्चों बताओ, इसके बाद मैं आगे बढ़ूं. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट. जब तीन if there are 3 things coming, अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सर एलिगेशन हम 3 में यूज कर सकते हैं, तो मैंने बोला नहीं बेटा, 3 के लिए हम यूज नहीं करेंगे, केवल 2 के लिए यूज करेंगे. अगर 3 है तो हम उसको नॉर्मल वेटेड एवरेज की तरह ट्रीट करेंगे. राइट? सो दिस इज द सेम क्वेश्चन which you were asking. In an academy there are 3 groups: juniors, sophomores and seniors. What is sophomores? Sophomores. And seniors. 60, 50 and 40 students respectively. The average marks of 3 groups pre-final year student. Okay, Shivam, thank you. 60, 50 and 40 students respectively. The average marks of 3 groups of the students in the examinations is this. What is the average marks of 3 groups? क्या मुझे इसमें allegation तो पहले use करना ही नहीं है. I cannot use it. So 40 into 60. Is it 60 into 60? देखो 60 students और उसका 60 average है. Plus 50 into 81. Plus 40 into 90. टोटल स्ट्रेंथ कितनी है तीनों मिला के? 60 plus 50 plus 40. देखना 75 है क्या? नो प्रिंसी, इट्स 75. कैलकुलेट इट. 75. देखो ऐसे ही तुम्हें मैं कैलकुलेशन तुम्हें बता दूं सीधा. ये देखो 1 0 गया,
आप कैंसिलेशन ऐसे मत करना, आप सॉल्व करना, मैं तो कर रहा हूँ 0 0 0 0 चला गया. So what is it? 60 into 6, 360. This is 5, 8 5s are 40, and 9 4s are 36. Divided by 5 4 9 10. Is it 15? अब भी 5 तो कैंसिल हो ही रहा है. 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 7 5 2. ऐड करके देख लो, यू गेट 75 ही आ जाएगा. यू विल गेट 75, राइट? सो नो एलिगेशन इज बीइंग यूज्ड हियर बिकॉज़ देयर आर 3 टर्म्स एंड 3 एवरेजेस गिवन. मैंने पहले कहा डोंट यूज इट फॉर 3 टर्म्स और 3 एवरेजेस. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a certain quantity of a variety of wheat costing 30 per kg is mixed with certain quantity of another variety of wheat costing 48 per kg. The resultant mixture cost 40 per kg. In what ratio are the two varieties of wheat mixed? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, you need not to write anything. Without writing we get the answer by using alligation, right? We can use it by alligation. जैसे एक वेराइटी है, देखिए फर्स्ट वेराइटी, मान लो देयर इज अ वेराइटी ए एंड देयर इज अ वेराइटी बी. फर्स्ट वेराइटी, व्हाट इज द कॉस्टिंग ऑफ फर्स्ट वेराइटी? इट्स 30 rupees per kg. सेकेंड वेराइटी इज, करेक्ट करेक्ट, ठीक है बच्चों, बहुतों के आंसर सही है, 48 per kg. जब आप इसको मिक्स करके बना रहे हो, जब मिला के बेच रहे हो या तुम्हारा कॉस्टिंग चेक करा जा रहा है, your costing becomes 40 rupees per kg. So they are asking what is the ratio of their weight, यानी A is to B का रेशियो क्या है. तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेते हैं. What is the difference of the number? It's 8, 48 minus, और इनका डिफरेंस बेटा कितना है? 10. So my ratio is nothing but 8 is to 10, and 8 is to 10 is same as 4 is to 5. So my answer is 4 is to 5. और देखो बच्चों, ये भी पता है कि हमारा आंसर ये वाला रेशियो ज्यादा आएगा, ये कम आएगा. कैसे? 30 और 48 का एवरेज मिड पॉइंट कितना होगा? इज इट 40 और 30 और 48 का 89? इज इट 39? सो 39 विल बी द मिड पॉइंट. सो अगर आंसर 39 से ज्यादा है, इसका मतलब जो डेविएशन होगा, यानी जो डेविएशन होगा वो बी की तरफ होगा, यानी इधर का वजन ज्यादा होगा, because it is more than 39. देखो इधर ज्यादा है, it is 5 times, it is 4 times. तो मैं आपको एग्जैक्ट निकालने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओनली हम इंडिकेट जरूर कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है. हमारा आंसर डेफिनेटली सेकेंड रेशियो की वैल्यू फर्स्ट रेशियो के मुकाबले ज्यादा होनी चाहिए as far as the question is concerned. I hopefully understand. This is a pure use of alligation here. Mixing, देखिए certain quantity of it is mixed. How we understand? We are using alligation mixed. So when you are mixing, alligation starts. Alligation को हम use कर सकते हैं mix वाले में. चलिए next. बच्चों clear है यहाँ तक? Perfect. Now let's start with mixtures, because mixtures में भी हम alligation use करते हैं. देखिए mixtures में कैसे, ध्यान से सुनना. A mixture of milk and water has a milk and water ratio 4:1. मैं बिना एलिगेशन के पहले यूज कर रहा हूं, बिना एलिगेशन के. मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1, right? And on adding 15 liter of water to the mixture, the ratio of milk water changes to 3:2. यानी when you add 15 liter water, the new mixture, new ratio becomes, milk water ratio becomes what? 3:2. अब आप देखिए ध्यान से, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं ना कि let the milk be
रेशियो है ना, let the milk be 4k, let the water be k, because ratio is 4:1, let the milk be 4k, water be k. अब तुमने ऐड क्या करा, वाटर, तो मिल्क, मिल्क में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, so the original now milk will still remains 4k, but water will be changes to k plus 15. I hope clear. So water आपका k plus 15 हो गया और milk तो 4k ही रहा, and the new ratio is 3/2, so it means my answer is 4k divided by k plus 15. Yes, Princey, correct answer is 3/2. So my answer is cross multiply 8k is equal to 3k plus 45. So we have 5k equal to 45. So my answer is k equal to 9. Question क्या था? What is the quantity of milk initially? So initially कितना quantity था? 4k. I got k equal to 9. So what does 4k means? 4k का क्या मतलब हो गया? 4 into 9, that is 36 liter is the initially the milk of volume of milk. ठीक है? I think everyone, जो भी जिन्होंने भी बहुत बच्चों ने आंसर निकाले, all of you are getting the 36. But I am asking you, have you used alligation in this topic? क्या हम इस क्वेश्चन में alligation यूज कर सकते हैं क्या? क्या हम alligation यूज कर सकते हैं? मैं आपको करके दिखाता हूं. पहली क्वांटिटी A है, दूसरी क्वांटिटी B है, और मिक्स होने के बाद ये है. सो पहली क्वांटिटी में मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 4:1, राइट. इस वाले में मिल्क तो कुछ है ही नहीं, सारा वाटर वाटर ही है. वाटर इज 15 लीटर. इज इट क्लियर? यानी रेशियो इज, मिल्क वाटर रेशियो इज 0, यू कैन से. अब इसमें तुम्हारा मिल्क वाटर कितना है बच्चों? मिल्क वाटर इज हाउ मच? 3:2. ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा, मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क हियर? इज इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 4 डिवाइडेड बाय 5 into 100? अरे 4/1 का मतलब क्या है? 4 पार्ट मिल्क तो 1 पार्ट वाटर. तो अगर 8 पार्ट मिल्क तो 2 पार्ट वाटर, तो 8 + 2 10. कैन यू से 80% मिल्क? This is same as 4/5 into 100. So is it 80% milk is there? बच्चों क्लियर है? So 80% milk. So यहाँ तुम्हारा मिल्क कितना है? 80%. यहाँ मिल्क कितना है बच्चों? 0%. यहाँ मिल्क कितना है बच्चों? 3/5. It means 60%. ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी एलिगेशन यूज करोगे, यहां आप मिल्क का परसेंटेज या मिल्क का रेशियो, यहां भी मिल्क का रेशियो तो यहां भी मिल्क का रेशियो. अगर आप यहाँ वाटर का रेशियो तो यहाँ भी वाटर का रेशियो, यहाँ भी वाटर का रेशियो, बिकॉज आप चेंज केवल एक ही क्वांटिटी का देखना चाहते हो. ठीक है? सो एलिगेशन में ये कहता है कि इनका जो डिफरेंस है वो यहां लिखना है. तो इस बार ये 0 सबसे छोटा है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा बेटा? 60. 60 - 0. इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चे? 20, बिकॉज 80 - 60. इसका मतलब आप कह रहे हो कि दोनों मिक्सचर्स का जो रेशियो है, यानी A:B का जो वॉल्यूम रेशियो है, इट इज नथिंग बट 60:20, दैट इज 3:1. ओके? अरे बच्चों बोलो. ठीक है? यानी ए और बी का जो रेशियो है, वॉल्यूम का जो रेशियो है, वो 3:1 है, और 1 इज इक्विवेलेंट टू, ये जो 1 है वो कितने लीटर के इक्विवेलेंट है? 15 लीटर. अरे बी क्वांटिटी कितनी है? 15. यानी बी तुम्हारा अगर 15 है तो ए को कितना होना पड़ेगा? 45.
when B is 15, A is 45 because 3:1 होना चाहिए. 3:1 यानी 1 is B is equivalent to 15, so A is equivalent to 45. यानी what is the volume of first container? It is 45. So what is volume of milk? तो milk कितना है बच्चे? Milk is nothing but 4/5 of 45. So answer is 4/5 into 45 क्योंकि 4/5, so it's 59. Answer is 36 liter. Got the point ना? बच्चों पहले बताइए, हैव यू अंडरस्टैंड द एलिगेशन मेथड फ्रॉम दिस? ये तो सबको आता है, ये वाला मेथड तो आप कर सकते हो, बट हैव यू अंडरस्टैंड द एलिगेशन? ठीक है. अच्छा, कैन वी डू इट फ्रॉम वाटर परसेंटेज? यहाँ वाटर का कितना होता? 20%. यहाँ वाटर कितना होता? 100%. 20%, 100%, दिस विल बी 40%. 20%, 100%, 40%. रेशियो बेटा तब भी 60:20 यानी 3:1 ही आएगा. Still the ratio will not change. Ratio will remain 3:1. ठीक है. समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके शुभांगी, लास्ट स्टेप. हाँ हाँ बेटा समृद्ध, 15 लीटर तो बी का प्योर टोटल वॉल्यूम ही तो है, बिकॉज बी का 15 लीटर ही ऐड किया गया है, तो बी का 15 लीटर ही होगा ना, राइट? एक बार आओ देख लीजिए आप, जिनको समझ में नहीं आया. 4:1, 4:1 रेशियो. दिस रेशियो इज नॉट गिवन, दिस रेशियो इज 3:1. आपने दोनों को मिक्स करके आपका रेशियो 3:1 है. नाउ व्हाट यू आर सेइंग, 15 liter is added to the A mixture, getting 3/2 as a mixture. So मैंने क्या बोला, मिल्क का परसेंटेज कितना है? 80%. यहाँ मिल्क का परसेंटेज कितना है? 0%, क्योंकि मिल्क तो है ही नहीं बी क्वांटिटी में, केवल वाटर वाटर है, 15 लीटर वाटर है. और जब दोनों को तुमने मिक्स किया तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई? 60%, क्योंकि आप डाइल्यूट कर रहे हो. 80% से उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगी ना मिल्क की, तो 80% से घट के कितनी हो गई? 60%. क्यों? क्योंकि यू हैव एडेड वाटर. सो वाटर को मिलाने पे योर कॉन्सेंट्रेशन बिकम 60%. तो मैंने क्या बोला था, एलिगेशन में दोनों को मिक्स करने के बाद इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस हम यहाँ लिखते हैं. 60 minus 0 is 60, and 80 minus 60 is 20. So this is your ratio of volume. यानी 60:20 is the ratio of volume. किसका ratio of the volume? A is to B. So A is to B is 60:20 means 3:1. Right? So what is B volume? 15 liter. B का तो दिया हुआ है 15. तो अगर B 15 है, A उसका 3 times होगा, that is 45. Because B अगर 1 है तो A 3 है. तो B अगर 15 है तो A कितना होगा? 45. So it means I got what is the volume of first container. यानी पहले कंटेनर की वॉल्यूम कितनी हो गई? 45 लीटर. तो जब कंटेनर की वॉल्यूम 45 है तो मिल्क कितना होगा? सो मिल्क होगा 4 divided by 5, यानी 4 upon total into 45. So 4/5 into 45 is 36 liter. Now clear everyone? ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन है. Now this is I'm giving you for you. Please tell me. Two vessels contain milk solutions having milk and water in the ratio 7:3 and 9:1 respectively. In what ratio should the solution be mixed so that the volume of resultant mixture has a milk and water in the ratio 17:3? कैसे करेंगे? Please try to use alligation. I need your answer. Definitely I will do it, but first 1 minute तो आप try करो, 1-2 minute.
मयंक उल्टा लिख रहे हो, आप उल्टा लिख रहे हो। एक बार चेक कर लो मयंक, आपने उल्टा लिखा है। शिवाली राइट। यस, नाउ इट्स करेक्ट मयंक। ये मैटर करता है बेटा, डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो। आलिया करेक्ट। हिमांशु राइट। एनीवन प्लीज बच्चों करो, बिकॉज हम केवल 8-10 बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहे बेटा, एवरीवन, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई इट। वेरी गुड पंकज। चलिए, आई थिंक इट्स मोर देन 1 मिनट। देखिए, it's a pure allegation. Can you say first vessel? Yes, Jaya, correct. Vaibhav, correct. Well done. So there is vessel number 1. पहले vessel, second vessel. अच्छा, ratio कितना दिया है milk water? 7:3. This is 7:3. And this ratio is 9:1. And new volume is 17:3. हमें तो V1/V2 निकालना है, right? आई थिंक ये परसेंटेज अगर आप निकालने जाओगे, इट्स वेरी इजी टू गेट द परसेंट। इज इट 70% डायरेक्टली? मिल्क, इज इट मिल्क सोल्यूशन इज 70%? मिल्क सोल्यूशन इज 90%। आई होप क्लियर। एंड दिस इज 20, इज इट 85%? देखो बच्चों, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस परसेंटेज इज मिल्क परसेंटेज। हम लोग जनरली मिल्क ही निकालते हैं, वाटर भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका हम डिफरेंस लेते हैं। याद रखिएगा, इनका डिफरेंस हम यहां लिखेंगे, इनका डिफरेंस यहां लिखेंगे, लेकिन ये जो वैल्यू होगी वो किसके लिए होगी? V1 की वैल्यू। और ये वाली वैल्यू किसके लिए होगी? V2 की वैल्यू। सर वो डिनोमिनेटर में 7/10 आएगा, उधर 9/10। No, ratio is 9/1. Please understand, ratio is 9:1, but percentage is 90%. ये तो सही है ना? Yes. Ratio is 7/3. Understand about the percentage. This is percentage, this is milk percentage, तो रेशियो तो सही है ना? So आप बताइए इसका डिफरेंस कितना होगा? 85 and 90, डिफरेंस इज 5. What is 70, 85? Is it difference is 15? So my ratio is nothing but 5:15. What does 5:15 stands for? Is it 1:3? And almost everyone getting the right answer. Almost everyone getting the right answer. Hopefully आप समझ रहे हो बच्चों। I will use it allegation every time, और allegation से हमारा क्वेश्चन आसान हो रहा है। We are getting the answer very quickly. रेशियो हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। ओके, सुरभि, आई एम टेलिंग यू, अगर मान लो कोई तुमसे कहे मिल्क और वाटर का रेशियो 7/3 है, तो इसमें मिल्क का परसेंटेज कितना है? तो 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3, 7 डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करते थे। इज इट 70? अब मेरे से 9/1 दिया हुआ है, तो 9/1 का मैं कैसे करूंगा? ये मिल्क ऊपर वाला है, नीचे वाला वाटर है, तो मिल्क का परसेंटेज, मिल्क की वॉल्यूम कितनी होगी? तो हम लिखेंगे 9/9 + 1 × 100। होपफुली अब
ये मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, ऑलरेडी आप रेशियो में ये सब काम कर चुके हो. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली द रिजल्ट. ठीक है सुरभि. सो दिस इज 70%, 80%. बेटा अब इसमें तुम वाटर का भी कर सकते थे. वाटर इज हाउ मच. देखो मैं रेड से वाटर लिख रहा हूँ 30%. इसका वाटर कितना होगा 10%. इसका वाटर कितना होगा 15%. अब भी डिफरेंस वही आएगा. देखो 15 10 का डिफरेंस 5, 30 15 का डिफरेंस 15. सो रेशियो चेंज नहीं हो रहा. रेशियो विल रिमेन्स सेम. और याद रखिएगा कभी भी ये मत लिखना कि द रेशियो इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ milk is to volume of milk of first container. No, this ratio is always the volume of container of first and the volume of container of second, not the ratio of volume of first. milk का ratio नहीं है, ये container के volume का ratio होता है always alligation में. ठीक है बच्चों. Okay, next question. Anandi bought a sofa set and a dining table for a total. अब मैं कोशिश कर रहा हूं मैं बहुत शॉर्टकट लिखने की. सोफा सेट एंड डाइनिंग टेबल total of 84,000 and made an overall gain of 20% on selling both. If they sold the sofa set at 18% profit, so 18% profit, and sofa set 18% profit and dining table, what is the profit? 25%. And overall how much gain? 20%. देखो मैं इसमें भी एलिगेशन यूज कर रहा हूँ 20%, क्योंकि मिक्स करके बेच रहा है ना, तो दोनों को मिला के उसने देखा कि आई एम गेटिंग 20% एज दी राइट. सो व्हाट इज द डिफरेंस? एलिगेशन में हम डिफरेंस क्या लिखते हैं? इज इट 25 minus 20? इज इट 5 is to what? 18 minus 20, is it 2? So 5:2 is the ratio of sofa set is to dining table. Sofa set is to dining table ratio is 5:2. What is the question? Anandi bought a sofa set and dining table for a total of 84,000 cost. Right? Cement. अब 84,000 यानी इन दोनों का सम अप 84,000 है. तो कह रहा व्हाट इज द प्राइस ही बॉट सोफा सेट. सोफा सेट का प्राइस क्या होगा? तो क्या मैं लिखूंगा सोफा सेट का प्राइस इज नथिंग बट 5 divided by what is total of this 5 plus 2? Hopefully clear. 5 divided by 5 plus 2 into 84,000. क्या बच्चों समझ में आ रहा है ये? सो ये तुम्हारा 7 है तो 7 से कैंसिल हुआ. 7 7 2 जा 14. सो आंसर इज सिंपली 60,000. और बहुत बच्चों ने ये निकाल भी लिया है. किसी को समझ में नहीं आया तो बताना. ये रेशियो आपका निकला सोफा सेट की क्वांटिटी और ये निकला 2 times डाइनिंग टेबल की क्वांटिटी. यानी अगर 5 सोफा सेट है तो 2 डाइनिंग टेबल है. तो हम कह सकते हैं रेशियो इज 5:2. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोफा सेट टू द टोटल सेट? सो सोफा सेट हो गया 5 और टोटल हो गया 5 plus 2 into 84,000. क्यों करा? क्योंकि 84,000 टोटल कॉस्टिंग कह रहा. तो टोटल कॉस्टिंग कितना हो जाएगा सोफा सेट का? 60,000. और नहीं आ रहा तो बच्चों छोटे बच्चों वाले की तरह करो. देखो let number of sofa set be 5k, let the number of dining table be 2k, total value is 5k plus 2k equal to 84,000. कर लो, k निकाल लो और फिर 5k के आंसर निकाल लेना. ठीक है. बट ये अवॉइड हम लोग करते हैं. कैट के एग्जाम देने हैं तो ये सब करने मतलब बिल्कुल ये नहीं करना. सीधा सीधा आंसर लिखना है. डायरेक्टली राइट द रेशियो. ठीक है बच्चों. सो नेक्स्ट आगे चले. तो देखो यहाँ ये भी एलिगेशन से. अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया आपको. अगर यह लॉस भी होता, देखिए कह रहा है ना 1 पे 18% प्रॉफिट, सेकंड पे 25% प्रॉफिट. अगर ये कह रहा था 18% प्रॉफिट एंड 25% लॉस होता
So you have to take minus here. Please understand, we can also do yes. If it is loss, you take minus. और आपको काम वही करना है जो आप कर रहे हो यहाँ. Whatever you are doing, you do. यानी अगर ये माइनस होता तो ये बड़ा होता, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते तो ये 45 यहाँ लिखा जाता. अगर ये माइनस होता, I will write 45 here. Hopefully clear. कोई फर्क नहीं पड़ता है माइनस प्लस प्रॉफिट और लॉस से. क्वेश्चन सॉल्विंग हम वैसे ही करेंगे जैसे कर रहे हैं. ये क्वेश्चन कर लोगे घर पे, ये भी एलिगेशन पे बेस्ड है. A man borrowed 36,000 total from two money lenders A and B. A and B. 10% and 7%. एक का क्या है 10% और एक का क्या है 7%. Both at simple interest for a year. If he paid a total interest of 2880, यानी उसने टोटल इंटरेस्ट अगर 2880 पे करा है और आपका ये प्रिंसिपल है और एक साल के लिए he's paid interest of this for an year. So can you find out what is the average percentage? What is the average rate of interest? So average rate of interest आप निकाल के देखिए. 2880 is a simple interest. Principal is 36,000. P into R I need to find out. T is 1 and divided by 100. 0. So आपका R आ गया 2880 divided by 360. So 0 से गया. I think ये 8 9 से कटेगा ना. 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18. So I'm getting 8% directly. तो बच्चे ये 8% आ रहा. तो जैसे हमारा 8% आएगा, बिकॉज एलिगेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये 36,000 का इन दोनों रेट से ओवरऑल ये निकल रहा. सो आई कैन से द डिफरेंस इज ये 1 और यहाँ डिफरेंस क्या है 2. सो A is to B is 1 is to 2. यानी 36,000 is being distributed in 2 persons A and B in the ratio 1 is to 2. यानी दोनों को बांटते हैं कितने में 1 is to 2 रेशियो में. A कितना बोरो किया था, तो A ने कितना करा था बताइए. So A का बोरोइंग अमाउंट होगा 1/3, 1 अपॉन टोटल इंटू 36,000. Is it clear? So it's a 12K or 12,000. बच्चों क्लियर है? Yes. समृद्ध 24,000 कैसे आया था? सर वो रेशियो का डिफरेंट हो गया था सर. वो एक्चुअली सर वो मैंने जो अच्छा तूने 1:1 कर दिया था. बेटा आप लोग ये मिस्टेक नहीं करो. इनका डिफरेंस जब लिखते हो तो ये डिफरेंस ये सामने वाले के लिए होता है, सामने वाले के लिए, राइट. और ये इसके सामने वाले के लिए होता है. दिस 1 रेशियो इज फॉर A and 2 रेशियो इज फॉर B. ठीक है? सर आप ऐसे भी कर सकते हैं. हाँ ओके सर. ठीक है ना? हाँ. आई थिंक ये मैंने आपको घर के लिए दिया था, बट ये आपने बना लिया. चलो ठीक है, समझ में आ गया बच्चों. So now have you understand how I'm using the allegation in each and every question whenever there is a mixing of two quantities, दो चीजें अगर मिलके बन रही हैं, then we are using allegation. This is the question of, again you can say, allegation. Can you do it? Again I'm giving you 2 minutes to solve it. This is question number 17.
चलो मैं बताता हूँ. See, 11.1. Yes, correct. Well done. Yes, Akash. Correct. How we started? Akash bought a certain quantity of pure milk at rupees 45. So, rupees 45. This is pure milk. Pure milk. And some water. अच्छा, some water का मैं क्या मानूं? Zero मानूं, क्या मानूं? Zero? But they may give the amount also. If they say Bisleri water of 12 rupees per liter. ये भी तो कह सकते थे 12 rupees per liter. तो वो हो सकता था. But I am assuming as water as zero. अब इन दोनों को मिक्स करके हम कितने पे बेच रहे हैं? It is not 48. 48 पे तो हम सोल्ड कर रहे हैं. हमें किसका लेना है? ये बाइंग है. This is your buying cost price. This is also cost price. So you need to find the cost price because ये cost price. Yes, Anshul, correct. Everyone getting the right answer. This is cost price. So can you find cost price? 48 is your selling price. SP equal to 48. P percent means profit percent is 20. Can you find CP? Is it CP is SP by multiplying factor? याद करिए. So what is SP? 48. What is multiplying factor? I can write down 1.2. I think 40 आ रहा है क्या देखना? Are you getting 40? Yes, 40. अब देखो, अगर आप प्योर मिल्क मिला रहे हो, प्योर मिल्क का रेट 45 है, वाटर का कॉस्टिंग 0 है, और दोनों को मिलाने के बाद योर कॉस्टिंग इज कमिंग आउट टू बी 40. So I can use the alligation. What is the difference of 40 and 0? Is it 40? And what is the difference of 40, 45? It's 5. So what does it means? अगर मैं इसका वॉल्यूम A मानूं, प्योर मिल्क का, और वाटर का वॉल्यूम B मानूं, so can you say the ratio of A by B is nothing but 8:1? Is it clear? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो आदमी है वो हर 8 लीटर प्योर मिल्क पे 1 लीटर वाटर ऐड करता है, right? Every 8 liter of pure milk he adds 1 liter of pure water. So what is the percentage of water he is adding? So percentage of water is what? 1 1 divided by total. What is total? 9. 1 divided by total into 100. I think आपने पढ़ा था. What is 100 by 9 or 1 by 9? Is it 11.11%? पढ़ा था ना हमने percentage में. What is 1 by 9 of the percent? So answer is 11.11%. ठीक है? बच्चों कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क, और अगर इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी कैन कंटिन्यू विद द अदर. ओके ओके, बिकॉज देखो रिस्पॉन्स आएगा तभी मुझे समझ में आएगा आर यू गेटिंग इट और नॉट. और जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क. डोंट हेजिटेट टू आस्क, प्लीज आस्क. यस राधिका, व्हाट इफ, मैं पढ़ नहीं पाया तुम्हारी बातें. Sir, what if CP of water is given? Yes, I'm telling you, if CP of water is given, क्या फर्क पड़ता है बेटा? ये वैल्यू क्या दिया होता? मान लो बिस्लरी वाटर है. बच्चों मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ. मान लो बिस्लरी वाटर है और बिस्लरी वाटर 20 रुपीज
रुपीज में मिल रहा, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है नाउ? परफेक्ट। आई होपफुली, मुझे लग रहा है यू कैन डू इट ना। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे एलिगेशन के क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे। इनफैक्ट हैंडआउट के हमने जितने भी एलिगेशन थे लगभग ज्यादातर हमने कर डाले। अब थोड़ा डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये कैट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये कम से कम इट हैज बीन आस्क्ड एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कैट में, घुमा फिरा के, घुमा फिरा के। व्हाई आई एम सेइंग घुमा फिरा के? सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं बट थोड़ा घुमा के। थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूं व्हाट डज इट मींस। पहले तो बहुतों को एक क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। देखिए, देयर इज अ क्वेश्चन, fresh dates contain 85% water by weight while dry dates contain 50% water by weight। ये डेट्स की बात कर रहे हैं, मैं ग्रेप्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेप्स वही चीज होता है, मतलब आप अलग अलग कह लो। एक ग्रीन, एक फ्रेश ग्रेप्स होता है, एक होता है ड्राई ग्रेप्स। मैं ग्रेप्स का बताऊंगा, आपको डेट्स का करना है, टेंशन मत लो। ग्रेप्स, फ्रेश ग्रेप्स को आप अंगूर कहते हो, ड्राई ग्रेप्स को क्या बोलते हो? किशमिश, यही कहते हैं ना। सो इसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। वाटर कंटेंट, वाटर परसेंटेज ज्यादा होता है और देयर इज अ परसेंटेज कॉल्ड पल्प परसेंट। पल्प, इसमें पल्प कम होता है, वाटर ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, पल्प ज्यादा होता है और वाटर इन जनरली थोड़ा कम होता है क्योंकि सूख चुका होता है, इवेपोरेट होके सूख चुका होता है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, दो ही क्वांटिटीज जुड़े होंगे इसमें, एक वाटर एंड एक पल्प। आपका गिवन नहीं होगा ये कि वाटर और पल्प है, आपको मानना पड़ेगा, केवल वाटर कंटेंट दिया होगा। और क्या होगा, 85% वाटर बाय वेट एंड ड्राई डेट्स कंटेन 50 वाटर बाय वेट। तो अगर 85% वाटर है तो पल्प 15% होगा, ड्राई में अगर 15% वाटर है तो 85% पल्प होगा। तो दो चीजें होंगी, एक वाटर कंटेंट और एक पल्प कंटेंट। व्हाट डज नॉट चेंज? फिर इसी फ्रेश ग्रेप को तुम धूप में सुखाते हो यानी सनलाइट में, सो वाटर विल इवेपोरेट, वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा। तो वाटर, सारे वाटर तो निकलते नहीं है बट मोस्ट ऑफ द वाटर्स इवेपोरेट्स, बट सम वाटर्स लेफ्ट। तो सम वाटर लेफ्ट में ये वाटर वो बचा हुआ रह जाता है। बट पल्प विल नॉट इवेपोरेट, पल्प का इवेपोरेशन नहीं होता है। यानी अगर ड्राई फ्रेश ग्रेप्स में जितना पल्प है उतना ही ड्राई ग्रेप्स में भी पल्प रहता है, पल्प विल नॉट चेंज। सो बस इसका फंडा यही है, द वेट ऑफ द पल्प नेवर चेंजेस फ्रॉम फ्रेश ग्रेप्स टू ड्राई ग्रेप्स। यानी आप फ्रेश ग्रेप से ड्राई ग्रेप्स कन्वर्ट करते हो तो पल्प, पल्प इज नॉट चेंजिंग, पल्प इज नॉट चेंजिंग। मैंने जैसे स्टेटमेंट बताया, क्वेश्चन अब कैसे बनेगा देखिएगा। किसी का आंसर आया? यस आरुषि, राइट, वेल डन। देखिए, दिस इज फ्रेश डेट, यस मयंक, राइट। फ्रेश में कितना वाटर है? 85% वाटर, दिस इज वाटर कंटेंट एंड दिस इज पल्प कंटेंट। और पल्प कितना है बच्चे? 15% पल्प है। बट ड्राई में क्या है बच्चों? ड्राई डेट्स में बिल्कुल इसका उल्टा हो जा रहा है, 15% वाटर रह रहा है और 85% पल्प रह रहा है। अब मुझे क्या कहा गया है कि हाउ मेनी ड्राई डेट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 17 केजी फ्रेश। यानी आपने फ्रेश कितना लिया? 17 केजी। आपको बताना है कि ये 17 केजी को जब धूप में सुखाओगे तो ये कितना बनेगा ड्राई में, ड्राई में कितना कन्वर्ट होगा। तो मैं क्या कहूंगा, सर कुछ नहीं है, सबसे पहले पल्प क्वांटिटी निकालते हैं। व्हाट इज पल्प क्वांटिटी? पल्प क्वांटिटी, आप बताइए इसका पल्प क्वांटिटी कितना होगा? 17 केजी का क्या निकालना है? 15%,
Is it answer is 15% of 17 kg? That means कैलकुलेट मत करना बच्चों, बिल्कुल सब कटवट जाएगा, बस इसको यही रहने देना. So I got, is it my 15 into 17 by 100 is my pulp quantity? Hopefully clear. Let the dry dates be x kg. आपका जो ड्राई डेट्स है कितना है, x kg का ड्राई डेट्स है. अब इस x इसी से 17 से ही कन्वर्ट होके x बना, ये मैं मान रहा हूं. तो x kg अगर ड्राई डेट्स है तो इस x kg में पल्प कितना होगा ड्राई डेट्स में? कैन यू से 85% तो पल्प होगा. किसका 85%? x का. सो कैन यू से 85% ऑफ x तो पल्प होगा. क्या यही पल्प ऊपर वाले पल्प के बराबर नहीं होगा? और ये पल्प कितना था? 15 इंटू 17 बाय 100. बोलना बच्चों, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 85 बाय 100 इंटू x इक्वल टू 15 इंटू 17 बाय 100. तो ये 100 से 100 गया, 17 से 17 गया 5, 5 से 5 गया 3. इज द आंसर इज 3 kg. यस. अब मुझे आप बताओ, जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, बट कोशिश करिए समझने की. मैंने एक ही स्टेटमेंट बोला था, pulp does not change from fresh date to dry date in any circumstances. Right? हाँ, जया, आई एम रिपीटिंग द सेम, बट एक बार और ध्यान से एक बार देखो जया, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट. बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, डोंट वरी. चलिए दोबारा मैं बता रहा हूं आपको. 17 kg को कन्वर्ट करके, क्वेश्चन इज सो कंफ्यूजिंग बट आंसर इज इजी टू कैलकुलेट. ओके, यस यू आर राइट. यस शुभांगी, क्वेश्चन इज सो कंफ्यूजिंग बट आंसर इज इजी टू कैलकुलेट. बिल्कुल. और कैट में भी क्वेश्चंस वही होते हैं जिसका कैलकुलेशन इजीली कैंसिल होके बहुत आसानी से आंसर आ जाता है. सो आई एम वंस अगेन डीलिंग दी सॉल्यूशन. आप देखिए दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर मेरे पास, सुनिएगा, अगर मेरे पास 100 kg ड्राई हो, ड्राई डेट्स हो, तो बताओ इसमें पल्प कितना होगा? कैन यू से 85 kg? ये तो मतलब है 85% है, इसका मतलब 85 kg पल्प होगा. चलिए इसको छोड़िए. तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि 17 kg हमारे पास है, लेकिन 17 kg ड्राई नहीं, फ्रेश है, यानी हरा है, हरा वाला डेट्स, यानी जिसमें एवापोरेशन की संभावना है. 17 kg फ्रेश डेट्स में मैं पूछ रहा हूं पल्प कितना होगा और वाटर कितना होगा. तो वाटर से हमें लेना देना नहीं है, हमें तो पल्प से लेना देना. इसका पल्प क्या मैं कहूंगा, पल्प की क्वांटिटी होगी 17 का कितना निकालना पड़ेगा, 15% ऑफ 17. इज इट 15% ऑफ 17 kg इज द पल्प? इज इट पल्प? राइट. नेक्स्ट, अब मैं इसको भूल जा रहा हूं, इसको भूल जा रहा हूं. मैंने माना कि 17 को कन्वर्ट करके हमारा x kg बन गया, यानी यही फ्रेश डेट को हमने कन्वर्ट कर दिया तो क्या बन गया, x kg. तो x kg में कितना पल्प होगा? कैन यू से x kg में ड्राई वाला x kg, x kg मतलब ड्राई वाला x kg. सो x kg ड्राई वाले में हाउ मच पल्प इज देयर? इज इट 85% ऑफ पल्प? सो कैन यू से 85% ऑफ x इज द पल्प इन ड्राई ग्रेप्स. ये ड्राई का है और ये फ्रेश या ग्रीन का है, कह दो फ्रेश का है. तो आपको मैंने क्या बोला, ग्रीन हो, फ्रेश हो या ड्राई हो, पल्प चेंज नहीं होता है. यानी क्या कहूंगा कि यही पल्प इसके बराबर होगा, बोथ पल्प्स विल बी इक्वल.
सो जैसे आप इक्वेट करोगे यू विल गेट x इक्वल टू 3 kg. ठीक है, अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्यूशंस में इस तरीके से करते हैं. अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर ऑफ मिल्क. नहीं बेटा, ये नहीं, ये भी क्वेश्चन हम नहीं करेंगे. चलिए मैं आपको एक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि व्हाट इज इट. बच्चों नेक्स्ट हाफ एन आवर प्लीज, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, नेक्स्ट हाफ एन आवर में आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनिएगा. नेक्स्ट हाफ एन आवर, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड, कभी नहीं समझ में आएगा. बहुत डिफिकल्ट है, मतलब आपको समझने के लिए. तो मैं आपको समझा रहा हूं रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड्स और क्वेश्चंस हम कैसे डील करते हैं. मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, और मैं इसमें ले रहा हूं, लेट 200 इज द मिल्क कंटेनर सोल्यूशन. अगर मैं 200 लीटर ले रहा हूं सोल्यूशन ऑफ लिक्विड, राइट, एंड मिल्क वाटर, क्योंकि मैं डेटा जानबूझ के ले रहा हूं ऐसा जो बहुत इजीली कैंसिल हो जाए. आई एम टेकिंग इट, मिल्क वाटर रेशियो इज 3:2. ठीक है, मिल्क वाटर रेशियो इज 3:2 एंड टोटल सोल्यूशन इज 200 लीटर. क्या मैं कहूंगा कि मिल्क इज हाउ मच? मिल्क कितना होगा बच्चों? 3/5. देखो मिल्क कितना होगा, 3/5 इंटू 200. आई थिंक समझ में आ गया. इज इट 120? एंड वाटर कितना होगा बच्चों? वाटर इज 2/5 इंटू 200. दिस इज वाटर. इज इट 80 लीटर? पहले आप मुझे बताइए, ये आपको समझ में आया नहीं है सानिया? नो नो, क्वेश्चन देखना था. नहीं नहीं, क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं अच्छा, बेटा, क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन नहीं है. मैं अपने से एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें. आई एम जस्ट क्रिएटिंग द क्वेश्चन. आई एम आस्किंग सम कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. अच्छा, देयर इज ठीक है नो सर. क्वेश्चन एट ऑल. देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल, सानिया. ठीक है So सर. there is a total solution is 200 liters, right? Milk solution is 120 liter, 80 liter is water solution. ये मैं आपको सिखा रहा हूं रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विड. अब लिक्विड कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी मिल्क और इट कुड बी वाटर. So there is a ratio of milk water 3:2. Milk is 120 liter, water is 80 liter, and अब हम इसमें दिखा रहे हैं, हमने क्या करा, हमने इससे 20 लीटर सोल्यूशन हटा दिया. कितना लीटर सोल्यूशन हटाया हमने? 20 लीटर सोल्यूशन हमने इससे हटा दिया. तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 20 लीटर सोल्यूशन हटाऊंगा तो मिल्क कितना हटेगा और वाटर कितना हटेगा? सो मैं कहूंगा कि सर ये तो वही बात हो गई, बिकॉज मिल्क वाटर आर होमोजेनस सोल्यूशन. यू कैन नॉट बाइफरकेट मिल्क एंड वाटर फ्रॉम द सोल्यूशन. हम कहेंगे उसी रेशियो में हटेगा जिस रेशियो में ये मिल्क वाटर था. सो हम कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है. मिल्क हटेगा 3/5 इंटू 20, दैट इज 12 लीटर, और वाटर हटेगा 2/5 इंटू 20, दैट मीन्स 8 लीटर.
Hopefully clear everyone. So 12 liter is the milk solution left out, removed, and 8 liter is the water removed. ठीक है, हमने इतना हटाया तो ये दोनों मिला के 20. अच्छा, अब मैं पूछूंगा मिल्क कितना बचा, तो मैं बोलूंगा इससे तो ये भी बहुत आसान है सर. 120 में से आपके पास पहले मिल्क 120 था, अब आप इसमें माइनस कितना करना है 12. सो 120 माइनस 12 इज व्हाट 108. देन कोई पूछे कि सर वाटर कितना बच गया, तो मैं बोलूंगा ये भी बहुत आसान है. 80 लीटर वाटर में से कितना हटा बच्चों 8 लीटर. So what is the answer? 72 liter. So this is my left out milk, left out water. ठीक है बच्चों, ठीक है. बट हम ये काम नहीं करेंगे. ये जो मैं आपको इतना प्रोसेस सिखा रहा हूं, ये हम काम नहीं चाहते हैं कि करें. हाँ सानिया बताओ व्हाट हैपन. मैंने कहा कि 20 लीटर सोल्यूशन मैंने हटाया, तो मैंने वाटर कितना हटाया. सो वाटर हटाया, जिस रेशियो में मिल्क वाटर था उसी रेशियो में आपका 20 लीटर भी निकलेगा. बिकॉज आप अगर 1 लीटर सोल्यूशन भी निकालोगे तो वो भी 3:2 के रेशियो में होगा. 4 लीटर भी निकालोगे तो भी 3:2 के रेशियो में होगा. 20 लीटर भी निकालोगे तो भी 3:2 के रेशियो में होगा. तो तुमने 20 लीटर हटाया तो कितना पानी हटाया और कितना वाटर हटाया, मिल्क हटाया. तुमने 12 लीटर मिल्क हटाया एंड 8 लीटर वाटर हटाया. तो आप बताइए पहले मिल्क 120 था, अब 12 लीटर हट चुका है, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट. इज इट ठीक है सर, समझ 108. में आया. जी सर, ठीक है. ठीक है, ठीक है सर, ओके. ठीक है, ठीक है, थैंक ठीक यू. है. बट बच्चों हम ये काम नहीं करेंगे. अब मैं क्या करने वाला हूं मैं आपको बताता हूं. व्हाट इज 20 लीटर ऑफ 200. टोटल सोल्यूशन कितना था ये 200. व्हाट इज 20 लीटर ऑफ 200. व्हाट इज दी. yes it's 10%. or is it 1/10 पार्ट. टोटल सोल्यूशन का क्या आप कह सकते हो 20 लीटर इज नथिंग बट 1/10 पार्ट. बोलो. अब देखिए इट मींस अब आप ये सब नहीं करोगे. मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं बच्चों. मतलब ये काम तो हम कर सकते थे. इट्स अ करेक्ट वे. ये कोई गलत नहीं हमने करा, बिल्कुल सही करा. बट थोड़ा लेंदी है और आगे चल के यू विल फेस प्रॉब्लम. अगर हमारे पास ऑपरेशन 3-4 हमने करने लगे ना तो इससे कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसको आप देखिए 20 लीटर आप हटा रहे हो, इट मींस कितना रेशियो आप हटा रहे हो 1/10 हटा रहे हो. यानी आपके पास रह कितना रहा है. कैन यू से, मैं ब्लू वाले से लिख रहा हूं कि रह कितना रहा है. सो स्टिक विथ 9/10. यानी आपके पास 9/10 पोर्शन रह रहा और 1/10 पोर्शन लेफ्ट आउट है. मुझे तो मिल्क से मतलब है जो इसमें रह रहा है. तो जो रह रहा है वो है सिंपली 120 इंटू 9/10 हमारा रह रहा. ये है मिल्क. और वाटर कितना रह रहा 80 लीटर वाटर था, उसका 9/10 अब भी रह रहा. तो 0 0 से काटा तो 72 रह रहा. और ये कितना रह रहा 0 0 से काटा 108. देखिए यही हमने यहाँ निकाला था 108 एंड 72. ठीक है. सो हम यही काम करेंगे, ये वाला प्रोसेस करेंगे नाउ. ठीक है. तो क्या आप कह सकते हो कि सर एक्सक्यूज मी, यस एक बार यस यस दोबारा बता पाएंगे प्लीज प्रोसेस. डेफिनेटली डेफिनेटली डोंट वरी. देखिए मैंने बोला 20 लीटर अगर आप सोल्यूशन हटा रहे हो तो व्हाट इज द रेशियो यू आर रिमूविंग आउट ऑफ 200. इज इट 20/200 आप यू आर रिमूविंग. सो 1/10 you are removing. 20/200 is what 1/10. So you are removing 1/10. So how much left 9/10. अरे अगर मैं टोटल रेशियो 1 मानता हूं तो 1/10 अगर हट रहा है तो what is left out 9/10. right clear. यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू. okay 9/10. now 9/10 is left out. आपके पास मिल्क कितना था 120. अब इस 120 का 9/10 रह जाएगा.
आएगा, 120 का कितना रह जाएगा 9/10, इट इज 108। मिल्क वाटर कितना रहेगा 80 का भी 9/10 रह जाएगा, दैट इज 72। इन वन लाइन वी आर गेटिंग द आंसर। अंडरस्टैंड? बेटा समझ में आ गया? Yes, sir. Understood. चलो चलो ठीक है। सो इस तरीके से अब मैंने इस क्वेश्चन में और भी एक डेटा हमने करा कि चलो नेक्स्ट स्टेप में 60 लीटर एड अप। 60 लीटर हमने क्या करा, एड अप। क्या ऐड करा, मिल्क। 60 लीटर ऐड करा हमने मिल्क। तो अब बताइए, पहले से आपके पास मिल्क 108 था और 72 था। अब मिल्क कितना हो गया बच्चे? इज इट 108 प्लस 60? इज इट 168? एंड व्हाट इज वाटर नाउ? 72 का 72 ही रहेगा। ठीक है। अब इसके बाद इसमें फिर से मैं कह रहा हूं 40 लीटर में फिर से हटा रहा हूं, 40 लीटर सोल्यूशन में फिर से हटा रहा हूं। अब आप ध्यान से सुनिए, 40 लीटर में अब हटा रहा हूं। अब ये कब हटा रहा हूं मैं? जब ये 168 और 72 होने के बाद। तो 168 72 जब हो गया तो 40 लीटर फिर से हटा रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन होगा सर अब इस प्रोसेस के बाद बताइए मिल्क कितना बचा और वाटर कितना बचा? तो मैं कहूंगा कि कुछ नहीं है, आप मिल्क तुम्हारा 168 है, वाटर 72 है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, ये सब आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ये सब नहीं निकालना है। अब आप कैसे करोगे सुनिए, 5 6 डोंट राइट इट नाउ, आई एम गोइंग द नेक्स्ट स्लाइड्स। ये आपने लिख लिया ना? अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि बेटा रिप्लेसमेंट में ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, जो मैं कर रहा हूं एक एक करके निकालने की जरूरत नहीं है, इन वन गो रिमूव पार्ट इज ऑल्सो इन द सेम रेशियो एज द प्रेजेंट। वो तो अभी देख लेंगे बेटा, डोंट वरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 200 इज सोल्यूशन। ठीक है, मिल्क वाटर रेशियो कितना था 3:2। मिल्क वॉज कमिंग आउट टू बी 120, यही आया था ना शुरू में, एंड वाटर वॉज 80 लीटर। अब आप आइए, अब मैं आपको सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करा रहा हूं। राइट एरो मीन्स रिमूव्ड एंड ब्लू एरो मीन्स एड अप। राइट एरो मीन्स मूव्ड एंड ब्लू एरो मीन्स एड अप। पहले केस में it is given 20 liter solution removed। सेकेंड क्वेश्चन में 60 लीटर मिल्क एडेड, ब्रैकेट में m मींस मिल्क एडेड। थर्ड केस में 40 लीटर सोल्यूशन रिमूव्ड एंड फोर्थ केस में 50 लीटर वाटर एडेड। आफ्टर डूइंग दिस, एक और केस मैं ले रहा हूं, वन मोर केस। इससे तुम्हारे एक एक क्वेश्चन का डिटेल खत्म हो जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। एंड 50 लीटर रिमूव। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद 20 लीटर हटाया, 60 लीटर मिल्क ऐड किया, 40 लीटर हटाया, 50 लीटर वाटर ऐड किया, 50 लीटर सोल्यूशन हटाया। इसके हटाने के बाद आई विल आस्क what is the volume of milk now left out, what is the volume of water is left out। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। बताइए इसमें टोटल वॉल्यूम कितना था 200, राइट।
और इसको आने के बाद 20 हटाया तो ये 180 रहेगा, और 180 में ऐड किया, क्या हम कहेंगे कि ये 240 सोल्यूशन अब रह गया होगा? आने के बाद 60 लीटर ऐड करने के बाद 240 रहा होगा, और ये भी 240 से ही निकाला गया होगा। अरे जो 240 आया होगा उसी में से 40 निकाला होगा तुमने। अब जब तुमने 240 से 40 निकाला तो 200 बचा होगा, फिर तुमने 50 जोड़ दिया होगा। इज इट योर 250? और ये जो निकाल रहे हो ये भी किससे निकालोगे? 250 से ही निकालोगे। पहले आप देख लो ये ध्यान से कि जो डेटा हमने लिखा है 200, 240, 240, 250, समझ में आया हमने कैसे लिखा? शुरू में 200 था सर, ये एक बार और बताना, ठीक है मौली? देखिए आपके पास 200 था, तो ये तो 200 है, 200 में से आप 20 निकाल रहे हो, तो क्योंकि हमें तो रेशियो लेना है ना कि किस में से आप निकाल रहे हो, तो 200 में से 20 निकाल रहे हो। चलो निकाल दिया। अब कितना बचा इसमें? 180। 180 में तुमने जोड़ा कितना? 60, तो 180 प्लस 60 इज 240। अब आपके पास निकाल क्या रहे हो? 40। किस में से निकाल रहे हो 40? 240 में से, तो 240 में से 40 निकाल रहे हो, तो 240 में से 40 निकालने पे कितना बचेगा? 200। लेकिन ऐड कितना कर रहे हो? 50, तो 250 रहेगा। अब इसी 250 में से ही तो 50 निकाल रहे हो। मौली क्लियर? नाउ प्लीज रेड वाले से मैं लिखूंगा परसेंटेज कितना जा रहा है। इज इट 1/10? 20/100, इज इट 1/10 परसेंटेज? 1/10 रेशियो। इस वाले रेड में 40/240 कितना होगा? 1/6। एक्सक्यूज मी सर, यस। यहाँ पे सर ये लास्ट वाला कैसे आया सर? ये वाला 250 मतलब जब हम जो भी 50 लीटर को निकालेंगे। नहीं, ये निकालेंगे नहीं, निकाल रहे हैं। किस में से निकाल रहे हैं? 250 में से निकाल रहे हैं बेटा। अगर सर हम सुनिए सुनिए सुनिए, अगर मैं ये कहूं ये 200 है, पहला वाला स्टेप, 200 में से तुम 20 निकाल रहे हो, तो ये 200 में से 20 निकाल रहे हो ना, 200 तो पहले से ही है, उसमें से 20 निकाल रहे हो, ये मतलब हुआ ना। ऐसा थोड़ी कि 180 में से निकाल रहे हैं। ये लेफ्ट आउट नहीं है, ये है कि कितने में से कितना निकाल रहे हो, कितने में से कितना। तो ये 250 में से कितना 50 निकाल रहे हो, ये मतलब है। ये 200 नहीं लिखोगे यहाँ। ओके सर, नाउ आई आई थिंक गॉट इट। यही मुझे देखिए, जो हम ऐड कर रहे हैं, वो तो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब हम हटा रहे हैं तो हम ओरिजिनल नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि उसी में से हम कितना हटा रहे हैं वही तो हमें पता करना है। भाई उस वॉल्यूम में से हम हाउ मच सोल्यूशन आई एम रिमूविंग, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट ना। ओके सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अब बताइए, अब इसमें कितना रहेगा, कितना बच्चे? ये है आपका 1/10, तो यानी इसमें रहेगा कितना? 9/10। ग्रीन से मैं लिख रहा हूं, ग्रीन विजिबल है कि नहीं है? Shubhangi, if the amount is already deducted, then why we repeat the number again like 240, 240 and 250? बेटा शुभांगी आप इसका मतलब समझे नहीं। ये 250 हम क्यों रिपीट कर रहे हैं दोनों में, बताता हूँ। 250 तो ये 50 ऐड करने के बाद है, और ये 250 अभी हटाने के पहले का है, ठीक है ना? क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कितना रेशियो तुम हटा रहे हो? भाई कितने में से? 250 में से ही तो 50 हटाओगे, तभी तो हमें पता चलेगा। यहां भी तो वही हम कह रहे हैं, ठीक है बेटा? think green is not visible. अब देखिए, इज इट 9/10 स्टिक? यहां कितना होगा बच्चे? 5/6। और स्टेप में कितना होगा बच्चे? 4/5। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, मैं मिल्क सोल्यूशन लिखने जा रहा हूं।
शायद आप एक लाइन में, अगर जिसको समझ में आ जाएगा एक लाइन में. नाउ मिल्क, व्हाट इज मिल्क? माय मिल्क विल बी, कब? इस ऑपरेशन के बाद. कितने ऑपरेशन हैं आप ध्यान से सुनिए. ऑपरेशन हमारे पास 3 है. दिस इज योर फर्स्ट ऑपरेशन. निकालना इज एन ऑपरेशन, ऐड करना इज वेरी इजी. बट कितने ऑपरेशन है? 3 ऑपरेशन हम कर रहे हैं. यानी पहली बार यहां निकाला, दूसरी बार यहां निकाला, तीसरी बार यहां निकाला. ऐड कर रहे हैं वो तो बात की बात है, बट ऑपरेशन देखिए. तो मिल्क सोल्यूशन होगा आपका, इनिशियली कितना है मिल्क? 120 इनटू, अब आप ध्यान से देखते जाइए. फर्स्ट ऑपरेशन में आपने क्या करा? आपने 1/10 हटाया, यानी मिल्क कितना बचा रह जाएगा? 9/10 इनटू, अब सब भूल जाओ. सेकेंड ऑपरेशन में कितना मिल्क रहेगा? 5/6. सब ऑपरेशन भूल जाओ. सेकेंड ऑपरेशन में कितना रहेगा? 5/6. ठीक है. थर्ड ऑपरेशन में कितना रहेगा? 4/5. ठीक है. ये मिल्क है तुम्हारा. मिल्क 120. अभी आपको आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये जो आपने मिल्क जोड़ा है इसका कहाँ है? मैं अभी बता रहा हूं वो कहाँ गया. आपने ये केवल इसके बारे में सोचा. ये जो 120 है ना, 120 का वॉल्यूम किस रेट में घटेगा? तो ये वॉल्यूम इस तरीके से घटेगा. बट देयर इज वन मोर टर्म, कि तुमने जब मिल्क ऐड किया होगा तो 60 ऐड अप हुआ होगा. इसमें 60 गया होगा ना मिल्क. तो 60 का क्या सिग्निफिकेंस है? सुनिए 60 का 60 मिल्क ऐड होने के बाद कितनी बार बाहर निकल रहा है? 2 स्टेप में, एक सेकेंड और थर्ड स्टेप में. तो 60 इंटू कितना मिल्क स्टिक रहेगा? 5/6. और इसमें मिल्क कितना रहेगा? 4/5. क्या कहीं इस सेकेंड स्टेप के बाद भी कहीं मिल्क ऐड हुआ है? नहीं हुआ है. सो दिस इज द टोटल मिल्क सोल्यूशन. ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आया होगा. मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूं स्टार्ट कैसे करना है. आप स्टेप्स लिख लीजिएगा 1 2 3 जब निकल रहा हो. राइट. आप देखिए मिल्क आपका ओरिजिनल 120 है. तो आप मिल्क के 3 केसेस, ये मिल्क कितना रह रहा? 2/9/10, 5/6, 4/5. मल्टीप्लाई कर दो. फिर मिल्क क्योंकि ऐड किया है तो इसका तो तुमने अभी यूज करा ही नहीं है. तुमने तो केवल इसका यूज किया. इसका सिग्निफिकेंस कब आएगा? सेकेंड और थर्ड स्टेप के लिए, क्योंकि ये तो पहले था ही नहीं. तो सेकेंड और थर्ड में इसको यूज करोगे 5/6 इंटू 4/5 एंड यू गेट दी वॉल्यूम ऑफ मिल्क. ये कितने भी ऑपरेशन हो, आप 30 ऑपरेशन भी कर दोगे, वी कैन गेट दी आंसर ऑफ मिल्क. अब आइए मिल्क सोल्यूशन ऑफ वाटर. वाटर का भी ध्यान से सुनिएगा. व्हाट इज इनिशियली वाटर? 80 इंटू वाटर में कितनी बार निकल रहा है? 3 बार. यानी कितना स्टिक कर रहा है? 9/10, 5/6, 4/5. सो आंसर इज 9/10 इंटू 5/6 इंटू 4/5 प्लस. क्या आपने सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या ऐड हुआ है वाटर? नहीं. क्या इसमें ऐड हुआ है वाटर? यस. यानी वाटर यहां जाके ऐड हुआ है. तो वाटर का सिग्निफिकेंस केवल थर्ड के लिए रहेगा, ना कि सेकेंड और फर्स्ट के लिए. तो आपने वाटर कितना ऐड किया? 50. तो 50 का सिग्निफिकेंस केवल इसके लिए रहेगा, 4/5 के लिए. सो दिस इज योर आंसर. ये आंसर आपका आ जाएगा. मेरे पास इसका आंसर लिखा हुआ है बेटा. इट विल कम आउट टू बी 112 लीटर एंड दिस विल कम आउट टू बी 88 लीटर. थोड़ा मुश्किल है समझना, बट आपको करना पड़ेगा बेटा. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर. यस. सर जो मिल्क वाला केस था उसमें हमने 120 में से 5/6 निकाल लिया था, तो फिर हमने 60 में से दोबारा क्यों निकाला? दोबारा बताओ. राधिका, राधिका, यू आर राधिका ना? यस सर. प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. आई हैवंट हर्ड. सर हमारे जो मिल्क की क्वांटिटी थी वो 120 थी. हाँ. सर उसमें से हमने 5/6 और 4/5 पहले ही निकाल लिया था. हाँ. तो फिर हमने 60 में से दोबारा क्यों निकाला उसको?
बेटा ये जो तुम्हारा 120 में से देखो, पहले जो 120 है ना, ये 120 में से तीनों ऑपरेशन हो रहा। हमने 120 में से केवल 3 ऑपरेशन करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन जो तुमने मिल्क ऐड किया, जो नया ऐड किया, उसका तो तुमने ये कहीं कहीं भी इंक्लूड नहीं करा। तो 60 का भी तो सिग्निफिकेंस होगा आगे आने वाले में। 60 तुमने ऐड किया, मान लो यहाँ 60 ऐड किया, तो 60 में से कुछ तो निकल रहा होगा। अब मेरी बात समझो, 60 में से निकल रहा होगा, 60 में से कुछ रह रहा होगा। तो 60 का सिग्निफिकेंस आपने तो यूज करा ही नहीं। अगर केवल 120 का करोगे तो ये तो 120 का आंसर दे देगा। लेकिन क्योंकि मिल्क तुमने 60 जोड़ा, तुम बताओ ना, तुम सोल्यूशन में 60 अगर ऐड करोगे तो मिल्क का सोल्यूशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मिल्क वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो कैसे बढ़ेगी? तो 60 का क्या सिग्निफिकेंस, तो तुमने यहाँ 60 ऐड किया है, तो ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए आएगा? सेकेंड और थर्ड स्टेप में ही तो आएगा, रिमूविंग में, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में तुमने रिमूव किया है। तो स्टिक आउट तो यही रहेगा, जो बचा हुआ रह जाएगा 5/6 और 4/5 रहेगा। तो 60 की वैल्यू केवल 5/6 और 4/5 के यूज पे है, ना कि ऊपर वाले पे। और इस 120 का यूज ऊपर के लिए भी है, सेकेंड के लिए भी है और थर्ड के लिए भी है। और मेरी बात सुनो, अगर ये 50 लीटर कहा होता मिल्क, अगर ये 50 लीटर मिल्क कहा होता, तो मैं एक और ऐड करता 50, यहाँ लिखता +50, और 50 में क्या लिखता? इंटू 4/5, क्योंकि एक स्टेप हो रहा होता। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, समवन वाज आस्किंग कि सर एक और कोई ऐसा ही क्वेश्चन दे। सर कैन यू गिव वन मोर एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम लाइक दिस? यस, आई कैन गिव यू एनी क्वेश्चन। मैं भी देता हूँ, दूं एक क्वेश्चन? टाइम है ना अभी हमारे पास? चलिए। एक्सक्यूज मी। यस 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 बेटा। हाँ सर, if we यस यस बेटा बोलो समृद्ध। अगर सर ये यहाँ पे अगर सर मतलब जो भी हमारा जो फोर्थ स्टेप है सर, यहाँ पे अगर हम वाटर को ऐड करने की बजाय अगर रिमूव करते देन फिर सर क्या होता हमारा स्टेप? अच्छा आप मुझे बताओ, वाटर को तुम रिमूव कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू रिमूव वाटर फ्रॉम सोल्यूशन? नो। whenever ओके you सर। remove, you will remove always solution। ये तो लॉजिकली है। मैं आपको अभी दूध और पानी मिला के दे दूं, क्या आप उसमें पानी और वाटर अलग कर सकते हो, मिल्क अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सो दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन, कि जब हम निकालेंगे तो हम सोल्यूशन निकालेंगे, और ऐड में तो मेरे पास छूट होती है ना कि मैं मिल्क ऐड करूं। या ओके सर, नाउ आई गॉट इट। इज इट क्लियर? या अच्छा, सृजन सिंह इज सेइंग सर नेक्स्ट क्लास में फ्रेश कॉन्सेप्ट देखेंगे, अभी ओवरफ्लो हो जाएगा। ऐसा करें क्या बच्चों? ही इज राइट, सृजन इज राइट। नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल स्टार्ट अप विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन। यहीं से शुरू करूंगा मैं। मुझे बस 10-15 मिनट और पढ़ाने थे, देन टॉपिक विल बी क्लियर्ड। ठीक है ना? तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, बट नेक्स्ट क्लास विल बी योर स्पीड मैथ्स क्लास। ठीक है? स्पीड मैथ वर्कशॉप विल बी देयर। There will be no handout. So in that speed math workshop, I will continue at least 15-20 minutes of this. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ, ये वाला मैं स्टार्ट करूंगा। मुझे याद दिला देना कि सर सोल्यूशन वाले आप वो मिक्सचर्स वाले थोड़े समझा दीजिए। आई विल वंस अगेन रिपीट, बट मेरी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार बैठ के पढ़िए, और एक एक करके जब आप निकालोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बोला, यही बात हो रहा है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन है। हाँ नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्लास डाउट सेशन है। चलो ठीक है, तो डाउट सेशन में अगर बोलोगे तो चलो, मैं नेक्स्ट जब भी तुम्हारा प्रॉपर क्लास होगा ना, आई विल डील दिस क्वेश्चन। मुझे याद दिला देना, ठीक है? यस सानी, आई विल स्टार्ट एट शार्प 8:15। मैं तो आ ही जाता हूँ शार्प 8:15। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास इज द डाउट सेशन। प्लीज solve all your questions related to 2A, 2B, 1A, 1B, right? And we will meet at doubt sessions. Chalo, then thank you so much and
Good night, everyone. सर Okay, Sanya. Yes. सर 13th क्वेश्चन में डाउट था एक 13th हैंड आउट का कहाँ है इसमें बताना। अभी हमने करा दिया था क्या 13? हाँ जी सर करा दिया था ओके, इसमें यस सर सर बताओ बेटा। सर इसमें ये डाउट था कि 45 लीटर्स कैसे निकाला था मतलब जो मिक्सचर है उसका देखो रेशियो, हाँ मैं बताता हूँ। रेशियो 3:1 आया था शायद, जहां मुझे हाँ याद है। हाँ सर 3:1 आया था ये इसका वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम कितना दिया था? 15 लीटर। ये वॉल्यूम निकालना था हमें। तो ये वॉल्यूम यानी 1 इज इक्विवेलेंट टू 15, सो 3 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? ये तो रेशियो वॉल्यूम है ना। अगर 1 ओके इज सर इक्विवेलेंट टू 15, सो 3 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच? डेफिनेटली 45 लीटर। ठीक है बेटा। ओके सर 9B, you want to see 9B? 9B देखो, दिस इज 9B बेटा। ठीक है, चलो गुड नाइट एवरीवन।